प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मंजूरी। सरकार के नए कानून को लेकर जारी हुआ नोटिफिकेशन। पिछले दिनों दोनों सदनों में पारित हुआ था बिल। तमिलनाडु को रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी की बड़ी सौगात। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबल ब्रिज का हुआ उद्घाटन। ट्रेन सेवा को भी पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह देश भर में धूमधाम के साथ मना रही बीजेपी। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। अयोध्या में धूमधाम के साथ मनाई गई रामनवमी। मंदिर में भगवान रामलला का हुआ जन्म। रामलला का अभिजीत मुहूर्त में किया गया सूर्याभिषेक। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पे किया कन्या पूजन। कहा, बेटे और बेटी के बीच भेदभाव ना करें। तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी 2025 के अवसर पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबल ब्रिज का उद्घाटन किया और एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। तमिल सौंधंगले तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, तमिलनाडु सरकार के मंत्रीगण, सांसद, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। வணக்கம். என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே, தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்களே, மத்திய அமைச்சரவையின் என் சகாக்களான அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்களே, டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசின் அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, சான்றோர்களே, பெரியோர்களே, என் நெஞ்சுக்கினிய அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, वणक्कम। साथियों, आज रामनवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। நண்பர்களே, இன்று புனிதமான ஸ்ரீ ராம நவமி நன்னாள். சில காலம் முன்பாகத்தான் அயோத்தியிலே பிரம்மாண்டமான ராமர் ஆலயத்திலே ராம்லலாவுடைய திருவதனத்தின் மீது சூரியனின் கதிர்கள் அற்புதமான திலகத்தை பொழிந்தன. பகவான் ஸ்ரீ ராமனின் வாழ்க்கை, அவருடைய ஆட்சியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நல்லாளுகை குறித்த உத்வேகமாகியன தேசத்தை நிர்மாணிப்பதில் பெரிய ஆதாரமாக இருக்கின்றன. இன்று ராம நவமியாக இருப்பதால் என்னுடன் அனைவரும் முழங்குங்கள், ஜெய் ஸ்ரீராம்। तमिलनाडु के संगम कालीन साहित्य में भी श्री राम के बारे में कहा गया है। मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
தமிழ்நாட்டின் சங்ககால இலக்கியத்திலும் கூட ஸ்ரீ ராமபிரானை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நான் ராமேஸ்வரத்தின் இந்த பவித்திரமான பூமியிலே நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ராமநவமியை ஒட்டி என் இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swami temple today. On this special day, I got the opportunity to hand over development project worth 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for these projects. நண்பர்களே, ராமநாத சுவாமி ஆலயத்தில் இன்று வழிபட்ட போது ஆசிகள் நிரம்ப பெற்றவனாய் நான் உணர்ந்தேன். இந்த விசேஷமான நாளன்று 8,300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களை அர்ப்பணிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இந்த ரயில் மற்றும் சாலை திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இணைப்பு திறனை வலுப்படுத்தும். இந்த திட்டங்களின் பொருட்டு தமிழ்நாட்டின் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, this is the land of Bharat Ratna Dr. Kalam. His life showed us that science and spirituality complement each other. Similarly, the new Pamban bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. நண்பர்களே, இது பாரத் ரத்னா டாக்டர் கலாம் அவர்களின் பூமி. அறிவியலும் ஆன்மீகமும் ஒன்றையொன்று நிறைவு செய்பவை என்பது அவருடைய வாழ்வு நமக்கு காட்டுகிறது. அதே போல ராமேஸ்வரத்திற்கான இந்த புதிய பாம்பன் பாலமும் கூட தொழில்நுட்பத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் ஒன்று சேர்க்கின்றது. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு நகரம் 21ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு பொறியியல் அற்புதத்தால் இன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தங்களுடைய தீவிரமான உழைப்பிற்காக நான் நமது பொறியாளர்களுக்கு என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. I just flagged off a new train service and also a ship a short while ago. Once again, I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. இந்த பாலம்தான் இந்தியாவின் முதல் செங்குத்து தூக்கு ரயில் வழி கடல் பாலம். இதற்கடியிலே பெரிய கப்பல்களாலும் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும். ரயில்கள் இதன் மீது விரைவாக பயணிக்க இயலும். நான் சற்று நேரம் முன்னதாகத்தான் ஒரு புதிய ரயில் சேவையையும் ஒரு கப்பல் பயணத்தையும் துவக்கி வைத்தேன். இந்த திட்டத்தின் பொருட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் மீண்டும் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, for many decades there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work.
Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. It will have a positive impact on the lives of the lakhs of people. நண்பர்களே, இந்த பாலத்திற்கான தேவை பல பத்தாண்டுகளாக இருந்து வந்திருக்கின்றது. உங்கள் நல்லாசிகளோடு இந்த பணியை நிறைவு செய்யும் பேறு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. பாம்பன் பாலம் சுலபமாக வியாபாரம் செய்தல் மற்றும் சுலபமாக பயணம் மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது. பல லட்சக்கணக்கான மனிதர்களின் வாழ்விலே இது ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். The new train service will improve the connectivity from Rameswaram to Chennai and other parts of the country. This will benefit both trade and tourism in Tamil Nadu. New jobs and business opportunities will also be created for the youth. ராமேஸ்வரம் தொடங்கி சென்னை வரையும் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் இடையிலான இணைப்பினை இந்த புதிய ரயில் சேவை மேம்படுத்தும். தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலா மற்றும் வணிகத்திற்கு இது ஆதாயங்களை அள்ளித்தரும். இளைஞர்களுக்கான புதிய வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் சந்தர்ப்பங்களை இது ஏற்படுத்தி தரும். साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज दोगुना किया है. इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है. நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே பாரதம் தனது பொருளாதாரத்தின் அளவினை இரட்டிப்பாக்கி இருக்கின்றது. இத்தனை விரைவான வளர்ச்சிக்கான ஒரு பெரிய காரணம் என்று சொன்னால் நமது அருமையான நவீன கட்டமைப்பும் அதில் அடங்கும். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாம் ரயில், சாலை, விமான நிலையம், துறைமுகங்கள், மின்னாற்றல், நீர், எரிவாயு குழாய்கள் போன்ற கட்டமைப்புகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை 6 மடங்கு உயர்த்தி இருக்கின்றோம். आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है. वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है. ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है. இன்று தேசத்தின் மிக விரைவாக மெகா திட்டங்கள் தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வடக்கிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஜம்மு காஷ்மீரத்திலே உலகின் மிக உயரமான ரயில் பாலங்களில் ஒன்றான சினாப் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மும்பையிலே தேசத்தின் மிக நீளமான கடல் பாலமான அடல் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிழக்கிலே கவனித்தோம் என்றால் அசாமின் போகிபீல் பாலத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலும் தெற்கு நோக்கி பயணித்தால் உலகின் வெகு குறைவான செங்குத்து உயர்த்தல் கொண்ட பாலங்களில் ஒன்றான பாம்பன் பாலத்தின் நிர்மாணம் நிறைவடைந்திருக்கின்றது. इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं.
देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। இதைப் போலவே கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரத்யேகமான சரக்கு போக்குவரத்து இடைவெளியும் கூட அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. தேசத்தின் முதல் புல்லட் ரயில் தொடர்பான பணிகளும் விரைவாக நடந்தேறி வருகின்றன. வந்தே பாரத், அம்ருத் பாரத் மற்றும் நமோ பாரத் போன்ற நவீன ரயில்களும் ரயில் வலைப்பின்னலை மேலும் நவீனப்படுத்தி வருகின்றன. साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप्ड नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप्ड नेशन, हर डेवलप्ड रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। நண்பர்களே, பாரதத்தின் அனைத்து பகுதிகளும் பரஸ்பர இணைப்புகள் உடையவையாக ஆகும்போது வளர்ந்த தேசமாக ஆகும் பாதை மேலும் வலுவடைகிறது. உலகின் அனைத்து வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் வளர்ச்சிக்கான காரணம் இதுதான். இன்று பாரதத்தின் அனைத்து மாநிலங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்படும் போது தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த சாத்தியங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றின் ஆதாயங்களும் கூட தேசத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கிடைக்கின்றன. நமது தமிழ்நாட்டிற்கும் கிடைத்து வருகின்றது. साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली की राजधानी सहित अब राज्य स्तर पर भी बीजेपी अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रही है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल हमारे लिए अभूतपूर्व सफलता है। इसी मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। हुए थे दो देश को प्रधानमंत्री देने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तृतीय कार्यकाल हमारे लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। आज देश का 21 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का शासन है। देश का 70% भूखंड में भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए ने सुशासन का एक नया परंपरा शुरू किए है। हमारे असम में भी आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा लोकप्रियता हासिल करने में हमने सफल हुए हैं। आज प्रतिष्ठा दिवस का ये क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे तमाम कार्यकर्ता को मैं शुभ संदेश देता हूं और मैं यही भगवान को प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान आशीर्वाद करे, शक्तिशाली करने के लिए हमें आशीर्वाद करे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हमारे संकल्प है वो संकल्प कामयाब करने के लिए हमें प्रेरित करे, उत्साहित करे, हमें आशीर्वाद दे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ता, जो देश भर के कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम जिस तरह से पूरे देश भर में 1980 से स्टार्ट हुआ, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम गोवा प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ था। मैं इससे पहले सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि गोवा के लिबरेशन मूवमेंट में भी जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा योगदान था।
तभी से जनसंघ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो जनसंघ के नेता जगन्नाथ जोशी, इनका भी लिबरेशन मूवमेंट से गोवा मुक्त करने के लिए भी उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा था। 1980 से लेके अब तक, मीन्स लेट काशीनाथ परब से लेके दामू नाइक तक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवास रहा है, उनके सबसे हमारे बड़े नेता पर्रिकर जी हैं, श्रीपाद जी नाइक है, इनका सभी का योगदान से आज भारतीय जनता पार्टी से 4 एमएलए से लेके आज पूरे 28 एमएलए जो हम सत्ता में गोवा में आए, वही से लेके डबल इंजन में जो काम किया माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जो काम जो लास्ट 50 इयर्स में नहीं हुआ था, वही काम हम इस 10 साल में डबल इंजन के सरकार में कर पाए। इसलिए इस स्थापना दिन के अवसर पर मैं सभी गोवा प्रदेश के सभी लोगों का, हमारे हित चिंतक और हमारे कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी अवसर पर मैं मांगता हूं कि उन सभी का आशीर्वाद हमें सदा रहे। बस यही आज स्थापना दिन के ऊपर सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए इस गोवा प्रदेश में पूरा हम कार्यरत रहेंगे। स्थापना का दिन में क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि अपकमिंग 2027 का इलेक्शन? हम तो इलेक्शन जीतते ही रहेंगे। आगे आने वाली 27 इलेक्शन में हम 27 पे 27, ये तो हम हमेशा के लिए घोषणा हमने ऑलरेडी डिक्लेयर की है। लेकिन इस स्थापना दिन के अवसर पर बस मैं इतना कहूंगा कि माननीय मोदी जी का सपना विकसित भारत 2047, उसी के साथ साथ विकसित गोवा 2047 करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहे और लोगों का सहयोग रहे। बस यही हमारा संकल्प है। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए गोवा में आगे आने वाले 100 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे गोवा के योगदान में। बस यही हमारा संकल्प है। जनता पार्टी एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये कहते हैं ना, जिसका पल्लू पकड़ लिया छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी, कोई छोड़ कर बाज गया, परंतु हमने नहीं छोड़ दिया किसी को। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं पर भी ये खरा उतरे। आज यहां से इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे लिए और गर्व की बात है, जहां हमने आज अटल पार्क का शिलान्यास किया है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति, अगर कोई भी बाहर से इस पार्क में आएगा तो उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए हैं वो सारा का सारा यहां पर वो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऊंची प्रतिमा भी उसी पार्क में लगेगी। ये अटल पार्क जिसका शिलान्यास आज हुआ है, और हमारे पंचकमल और अटल पार्क के बीच में हमारा अटल चौक भी आज उसका भी शिलान्यास हुआ है। और इस अटल मार्ग के ऊपर हुआ है, जो ये अटल मार्ग है, इसी के ऊपर ही अटल चौक का आज शिलान्यास हुआ है। उसके सामने अटल पार्क है, अटल चौक के सामने आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को और गति देने के लिए आज इस अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है।
गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि कन्या पूजन के साथ ही बसंती नवरात्रि का ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है। दैनिक जीवन में भी सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि वे बेटे और बेटी के बीच कोई भी भेदभाव ना करे। नवमी तक जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होगा और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा
इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।